میں چونکہ جو آج کے گرانٹس ہے اور ہمارے آنریبل منسٹر جاوید احمد ڈار صاحب ہیں، بہت ہی امپارٹنٹ محکمے ہیں یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری معیشت ہے جس پر ہم ابھی زندہ ہے وہ سارے یہی محکمے ہیں جن پر ہم روز یہاں لڑائی کرتے ہیں، وہ تو الگ نوعیت کے ہیں۔ اور فی الحال جو ہمارے آنریبل منسٹر ہے نوجوان ہے اور ایکسپیرینسڈ بھی ہے اور خوش مزاج بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب یہ ڈیلیور کرتا ہے، جب یہ ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، اس وقت تھوڑی ایک آنکھ کانی کرتا ہے، ایک آنکھ سے کم دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے زیادہ دکھتا ہے۔ ایسا پچھلے 1.5 سال میں گراؤنڈ سے دکھ رہا ہے۔ یہ کوئی میرا ذاتی کمنٹ نہیں ہے، یہ چونکہ گراؤنڈ کی جو بات ہے، تو میں چاہوں گا کہ اللہ کرے اس آنے والے سال کے لیے ٹھیک سے یہ دیکھے، پوری طرح دیکھے اور سارے علاقوں کو یکسانیت کے نظر سے دیکھے۔ اور میں یہ بھی یہاں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ جو آفیسرز کا ٹیم ہے، 1 to 1 کے بھی ہماری ملاقات ہوئی نہیں، ایسے موقع تو ملتے نہیں جس کی ذکر یہاں پر ہمارے ساتھی نے کی ہے، زیادہ تر کانفرنسز میں ہی مصروف ہوتے ہیں، مگر پھر بھی قابلیت کے حساب سے بہترین ٹیم ہے اور کریٹو ٹیم ہے۔ اور اس میں 2-1 ایریاز ان کے ہیں، یہ سارے امپارٹنٹ ہونے کے علاوہ 2-1 ایریاز ہیں جو اس وقت نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے چاہے ہارٹیکلچر پروڈیوس ہے اس ریاست کا، جس پر جب ٹورزم بھی بٹھایا جاتا ہے دشمن کی نظر لگ جاتی ہے، اٹیکس ہوتی ہے اور باقی کام کاج بھی ٹھپ ہے، روزگار بھی کہیں نہیں ہے، تو ایک ایریا ہے ہمارے خطے کے لیے جو ہمارے لوگوں کو سروائیول دیتا تھا، وہ ہے ہارٹیکلچر پروڈیوس، اسپیشلی ہمارا سیب، ہمارا بادام یا ہمارے اخروٹ، جو پورے جموں اور کشمیر میں بائی اینڈ لارج یہ 3 چیزیں تو ٹاپ لیول پر بنتے ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھارت اور امریکہ کے درمیان جو درپردہ ڈیل ہوئی ہے، جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، تو اس ٹریڈ ڈیل سے جو سب سے زیادہ جو نقصان پورے بھارت ورش کے کسانوں کو ہوگا، مگر پرٹیکولرلی اس میں ہمارا جموں کشمیر اس زد میں آ رہا ہے۔ اور ابھی امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا، وہ لاگو ہوا یا نہیں ہوا، ابھی شاید اس کی ڈسکرپشنز بھی نہیں آئی، مگر ہم سب لوگ اپنے اپنے ایریا سے جب اپنے فروٹ گروور سے بات کر رہے ہیں تو ان کے امپیکٹس نظر آنے لگے۔ جو ہمارا پہلے تو سیزنل ڈیمیجز تھے، ٹرانسپورٹ کے ڈیمیجز تھے، برسات کے ڈیمیجز تھے اسی وقت، اور اب جب تھوڑا سا لیول ایکول ہو گیا تھا مارکیٹ میں، مگر یہاں امریکہ انڈیا ڈیل کی وجہ سے ایک دم سلیش ڈاؤن ہوا ہے، اور ہمارے جو فروٹ گروورز ہے، جو پروڈیوسرز ہے، وہ اس وقت زبردست پریشانی میں آ رہے ہیں، اور اس کے امپیکٹس آنے والے دنوں میں اب اور آئیں گے، مستقل طریقے سے آئیں گے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ اس ڈائریکشن میں ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کو، سینٹرل گورنمنٹ جنہوں نے یہ ٹریڈ ڈیل کی اور جس میں نقصان ہمارے ہو رہے ہیں اور ہونے ہیں، تو ایسے میں گورنمنٹ کو، آنریبل منسٹر کو، چیف منسٹر صاحب کو آن بورڈ لے کر، کابینہ کو آن بورڈ لے کر، اس میں ہیویلی اس ہاؤس کی طرف سے اور جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے یہ ریپرزنٹیشن گورنمنٹ آف انڈیا کو جانی چاہیے کہ آخرکار گورنمنٹ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو سہایتا دلانے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو انکم لیول بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ کون سا ڈیل ہے، یہ کس کنڈیشن پر کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، جس سے ہمارا کسان ہی بیٹھ جائے گا۔ 80% سے زیادہ ہمارے لوگ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ سب سے بڑا کنسرن ہوگا آنریبل منسٹر صاحب کے لیے اور ہماری سرکار کے لیے، اس ریاست کے لیے۔ اسی طرح سے دوسرا محکمہ جہاں تک ہے وہ ہے رورل ڈیولپمنٹ۔ رورل ڈیولپمنٹ پچھلے 8-10 سالوں سے، 2008-9 سے جو منریگا کی سکیم، منریگا کا ایکٹ بنایا گیا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا نے بنایا تھا، پارلیمنٹ نے بنایا تھا، یونینمسلی بنایا تھا،
पूरे देश ने सराहा था, पूरे दुनिया ने सराहा था उसको, कि ये इतना बड़ा एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी मनमोहन सिंह जी के सरकार में, जो कोई न जात, न पात, न पार्टी, न इज्म, न कुछ देखता था। रूरल इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन एक एक्ट ये पैदा किया गया, और इस एक्ट को नाम बदलना, चलो वो तो एक अलग चीज है, कब किस वक्त क्या नाम रखें, ये तो सरकार ही वैसे ही है कि पिछले 10 साल से नामकरण ही बदल रहे हैं। नाम बदलने से काम नहीं होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट जो स्पिरिट ऑफ द स्कीम है वो खत्म कर दिया। हमें बताया गया कि अभी यूटी होने के नाते फाइनेंशियली शायद हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी 90-10 में यूटी जम्मू कश्मीर रहेगा, मगर जो कैपिंग उसकी लगाई, जो उसका प्लान अप्रूवल दिल्ली से होगा, तो फिर हमारे लोगों के बस में क्या होगा? अगर आप ग्राम सभा करके गांव के लोगों से ये कहलवा रहे हो कि आप बताओ आपके इस स्कीम के तहत क्या लेना है, तो प्रायोरिटीज भी उनकी होनी चाहिए। अब अगर वो प्रायोरिटीज ब्लॉक वाइज, हल्का वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से बैठ के करेगा, तो हाउ कम दे नो कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मतलब अर्जेंसी क्या है? तो उस तरह से लोगों के हाथ से निकाल करके इसको भी सेंट्रलाइज करने का उनका नियत है, जो हमारी सरकार, हमारे मिनिस्टर साहब को अगर तो वाज़ेह किया है, कोई फर्क है जम्मू कश्मीर के लिए, तो हमें एजिटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज एक बहुत बड़ा मामला आने वाले वक्तों में बनने वाला है। जब हमारे गरीब के पेट पर लात पड़ेगी तो वो तो आखिरकार चलाएगा, और चलाएगा तो फिर नेचुरली वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज़ख्म पहुंचाता है। इसी तरह से सर मैं चाहूंगा कि जैसे एग्रीकल्चर है, तो हमारे कई साथियों ने यहाँ जिक्र की है, ये धीरे धीरे ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हमारी कम होती जा रही है। या तो कन्वर्शन पूरा हॉर्टिकल्चर में हो रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, उसका कोई प्रतिबंध है ही नहीं। जितनी आज भी एग्रीकल्चरल यूज की जमीन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए क्या इंतजामात, क्या स्कीमें है गवर्नमेंट के पास, कौन सा तरीका है। नहीं तो आज तो जितना बचा है मेरे ख्याल से 10-15 साल के बाद में तो वो भी देखने को नहीं मिलेगा। वो चाहे फिर किसी किस्म का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा हो, वो देखने की जरूरत है। और उसी एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ साथियों ने बात की, चाहे वो बासमती की बात की या दूसरे प्रोड्यूस की बात की। मुश्कबदिज एक चावल है जो स्पेशली पर्टिकुलर एरियाज में बनता है, स्पेसिफिक एरियाज में बनता है। बट अब हो क्या रहा है, काफी खुशबूदार, काफी कॉस्टली चावल वो है, बट उसका प्रोड्यूस जब निकलता है उसको कोई खरीदने वाला सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्कीम ही नहीं रखा है कि अगर पहले जमींदारों को बूस्ट किया गया कि इसको बढ़ाओ, अगर आपका 10 कनाल में है ये 100 कनाल में करो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बूस्ट किया, उसका सीड सप्लाई किया है एरिया को। अब जब प्रोड्यूस निकल के आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मार्केटिंग निजाम रखा ही नहीं कि जिससे वो किसान को बर वक्त वो उठाया जाए और उसको अपना जो जेन्युइन रेट हो उसको मिल जाए, वो अगले साल की अपने घर की तैयारी करे। वो भी मैं चाहूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के नॉलेज में ऑलरेडी है, तो उसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक वो लेने की जरूरत है। सर एनिमल हस्बेंड्री, यूं तो हम सारे जंगलात है, काफी पहाड़ी एरिया है, मगर एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के जहां कुछ नए नए नस्ल भी इंट्रोड्यूस किए गए, वो एक पॉजिटिव स्टेप है। अभी भी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मिल्क प्रोडक्शन की बात की, उसको बढ़ावा देने की बात की, या दूसरे स्कीम में हार्टिकल्चर में कह दी, वो तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। मगर अल्टीमेटली जो इनका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जो वेटरनरीज है, वो जगह जगह पर मैसर नहीं है। ये हमने पिछले सेशन में भी उठाया था, आज भी मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि ये जो उनका जो हॉस्पिटल वाला सिलसिला है उसका कोई ना कोई तरीका निकल। मैं तो ये हर गांव में डिमांड है ये, मगर अब हर गांव हुकूमत दे नहीं सकता है। कोई ना कोई ऐसा, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जो क्रिटिकल एम्बुलेंसेज टाइप बनाए हैं कि कम से कम एक एम्बुलेंस एक ब्लॉक में इमरजेंसी पर काम आए, उस तरह का
वेटरनरी डिपार्टमेंट में भी कुछ उस तरह का करना चाहिए, एक इमरजेंसी कॉल के हिसाब से जो वक्ती तौर किसी भी गांव में किसी भी उसको मालिक को जरूरत हो वो उसके दरवाजे पर पहुंचे, वरना कहाँ वो गाय बांध के भैंस बांध के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाकर उसको दूसरे अस्पताल में लेना चाहिए। उसमें थोड़ी एम्ब्रेसमेंट सी वो फील कर रहे हैं। ऐसे तो पहले 10-10 किलोमीटर, आज के जमाने में हर ओनर कहता है कि हमको एम्ब्रेसमेंट फील होती है जब मौके पर हमको गाय बांध के ले जाना पड़ता है। इसी तरह से फिशरीज एक इम्पॉर्टेंट महकमा है जो हमारे जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर के लिए अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बेहतरीन मौका है। जब रोजगार कहीं नहीं, सरकारी नौकरियां कहीं नहीं है, तो जहां जहां फिशरीज का स्कोप है और उसको बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी डायरेक्शंस है, मगर बहुत सारे कुछ इकदाम इन्होंने उठाए हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को इन्होंने एनकरेज किया है, मगर वो लिमिटेड एरियाज के लिए पता नहीं वो सरकारी पॉलिसी के तहत में इन्होंने एंगेज किए हैं या खुद ब खुद लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। मगर दोनों सूरतों में उन एरियाज को फिशरीज को बूस्ट करना चाहिए जहां फिशरीज को प्रोडक्शन बन सकता है। उसमें मैं स्पेशली मेंशन करूंगा वेरीनाग, मतलब आज तक ये माना जाए आफ्टर कोकरनाग दी बेस्ट एरिया, बेस्ट पानी जो है वो वेरीनाग में है, और भी इसी तरह से जम्मू कश्मीर में आपके एरिया में भी होगा और एरिया में भी होगा। उन छोटे छोटे एरियाज को भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब आने वाले साल में उस एरिया को भी पहले तो वो पानी प्रोटेक्ट हो, पानी के नाले प्रोटेक्ट हो, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज उसमें कायम किया जाए, ये मेरी जरूरत होगी। पंचायत राज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास में है, और चूंकि मैंने पीछे भी बताया कि ये पंचायत राज के तहत में एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता था। जब ये हाउस नहीं था बीच में कई साल, तो तब भी लोगों के लोकल स्तर पर कामकाज चलते रहे, ह्यू एंड क्राई कम रहा, चाहे 370 हटाया, 35A हटाया, स्टेट खत्म कर दिया, अथॉरिटी खत्म कर दी, मगर गांव देहात में इस पंचायती राज सिस्टम की वजह से उनके रोजमर्रा के काम, रोजमर्रा के वहां पर जो छोटे छोटे मसले होते थे उसके लिए एक लीडरशिप उनके पास अवेलेबल थी। अब पिछले 2-2.5 साल से उनका टर्म खत्म हुआ, डीडीसीज का भी टर्म अब 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इस पंचायत और डीडीसी के डायरेक्शन में क्या नेक्स्ट प्लान है, जबकि इसमें जब पीछे हम लोगों ने अमेंडमेंट की थी, आप तब मिनिस्टर थे, ये हुआ था कि टर्म खत्म होने से पहले इनका जो अपना इलेक्शन कमीशन है वो अगले चुनाव की तैयारी करेगा। अब यहाँ पंचायतें खत्म हुई, डीडीसी खत्म हुआ, हो सकता है कि वेट किया गया होगी कि जब तक डीडीसी का टर्म खत्म ना हो, जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये तीनों लेयर का चुनाव इकट्ठे होता है, सरपंच का चुनाव हो, बीडीसी का हो या डीडीसी का हो, ये एट ए टाइम तीनों चुनाव होते हैं ताकि लोग एक बार वोट करें और 5 साल के लिए टर्म हो। मैं चाहूंगा कि उस अमेंडमेंट के बाद में अगर इस साल के दरमियान इन तीनों लेयर्स का इकट्ठे चुनाव हो, उससे लोगों को रोजमर्रा के कामों को आगे बढ़ाने में मदद होगा, क्योंकि उनकी लोकल लीडरशिप वहां अवेलेबल रहती है। अभी किसी साथी ने यहाँ पर बताया कि डीडीसीज को फंड्स बढ़ाने की जरूरत है, और वो भी कंसिडर हो, मगर मेरी इस ऐवान के जरिए से ये गुजारिश होगी कि जब भी पंचायतें बने, आपने एक मिनिमम रिन्यूमरेशन रखा था सरपंच और बीडीसी और डीडीसी के लिए, मगर सबसे बड़ा जो उसमें जो सबसे बड़ा टीम है और बड़ी फिगर है वो है पंच मेंबर्स का, जो करीबन 32-33,000 के आसपास उनका फिगर बनता है। तो मैं चाहूंगा आने वाले निजाम में अगर उनको थोड़ा बूस्ट किया जाए 5 लेवल पर, क्योंकि जितना छोटे लेवल का चुनाव होता है, जितनी छोटी लेवल की लीडरशिप होती है, उतना उसके ज्यादा परेशानियां होती है। 200 चूलों के दरमियान 5 मेंबर चुना जाता है, उसके खर्चे अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो दूसरे मीन्स इस्तेमाल करेगा, जो बाद में हमको यहाँ सुनने पड़ते हैं। तीसरी मैं इसमें यही कहूंगा, एक साथी ने कहा ये ब्लॉक दिवस, अब तो पता नहीं कितने दिवस हो रहे हैं, और ये कौन करता है और उसमें बेनिफिट किसको होता है, किसको वो सुनते हैं वहां पर,
बड़े बड़े अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, बड़े बड़े अधिकारी जैसे पिकनिक के लिए बस फटाफट मैसेज कर दिया, भाई फलानी जगह ब्लॉक दिवस करो, और कंसर्न्ड एमएलए को इब्शा तक नहीं होता है, और एंड में जो वो कमिटमेंट वहां करके जाते हैं, अवाम कुछ कहेगा, जो भी 10-5 लोग वहां आते हैं वो अगर कोई चीज वहां डिमांड रखते हैं, अधिकारी कमिटमेंट कर जाता है, तो वो कमिटमेंट जब पूरी होती नहीं तो जवाब हमको देना पड़ता है। ये तो जबरदस्त विडंबना है, एक परेशानी है। या तो हम कमिटमेंट करें, जवाब वो दें, मगर उल्टा कमिटमेंट वो करके आते हैं, फिर जवाब हमसे मांगते हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए। मुझे भरोसा है कि आने वाले साल में पिछली बार की तरह ना हो, क्योंकि इस मनरेगा और स्कीम में कुछ चेंजेस आ ही रहे हैं, वरना एक पैरेलल दुकान आपके अथॉरिटीज का चलता है कि कोई भी फर्द हो सकता है मंत्री जी के पास जाता हो दरखास्त लेकर, हो सकता है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाता हो सकता है डायरेक्टर साहब के पास जाता हो सकता है एसीडी साहब के पास जाता है, फटाफट कलम उठाता है वहां से कि भाई ये 10 लाख रुपए का काम दे दो, और आउट ऑफ टर्न, और उसका कोई ग्राम सभा नहीं, उसका कोई गांव से पूछताछ नहीं, और सीधे ऊपर से ही एक पर्सन के कहने पर एक गांव में अफरा तफरी मचाते हैं। तो फिर ये बाकी जो आपने निजाम इसका रखा है वो कहाँ रहा है? तो इसलिए इन चीजों को देखने की जरूरत होगी। मेरे ख्याल से मैं फिर एक बार मंत्री साहब को शुक्रिया करूंगा कि कम से कम खुशसलूबी के साथ पेश आता है, काम हो या ना हो वो जवाब भी उनको हो, तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे हम सब लोग चलते हैं। हाँ, बहुत है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुस्कुराहट को लेकर ये भी एक अदा है, ये हर एक नहीं कर सकता। अंदर से आप भले कोई नियत रखो कि मैंने काम नहीं करना है, ब्लॉक ऑफिस को उद्घाटन नहीं करना है, मगर जब सामने आ जाए तो मुस्कुराहट के साथ पेश होता है तो सब गम गिले पीछे हो जाते हैं। उस बात के लिए, उस बिहेवियर के लिए मंत्री साहब का शुक्रिया। थैंक यू।